गणपति बप्पा मोबाइल का बैठा लो भाई। We actually launched the poster, and of course our star. We've got both our stars on the poster. We've got Gannu ji and Daisy, so we couldn't go wrong. You can't say like that. You Gannu can't. is the star of this. He's the star. He's the superstar. Yeah. And the poster is very nice. And in terms of the title, The Elephant in the Room, ये एक बहुत unique title. Me and my wife Aarti, who's the producer, we came up with the title because जो concept होता है elephant in the room, it means ऐसी चीज़ को एड्रेस नहीं करना जो सब जानते हैं। ये दोस्तों में होता है, फैमिली में होता है, हर जगह होता है कि एक अंडर करंट चल रहा होता है। किसी पार्टी पे जाओ तो हंस के मिल रहे, लेकिन कुछ दिमाग में चलते रहता है। तो द टैगलाइन ऑफ कोर्स वाज दैट इट टुक एन एलिफेंट इन द रूम टू कम इनटू द रूम टू ब्रिंग आउट द एलिफेंट इन द रूम। So it's a tongue twister as well. And it was not planned. She came for dinner. Yeah. And sorry to interrupt. It's a beautiful story. We believe, हम उस वक्त सच में believe करते कि यार it will all come together on its own. So we met for dinner, ऐसी बातचीत कर रहे हैं, and she, without knowing, started talking about spiritualism and her bond with the gods and all that stuff, and she's like, now I'm really feeling the energy and all that. And मैं और आरती एक दूसरे को देख रहे हैं. I said यार, and we saw our character, हमारी फिल्म का जो लीड था, we both saw her in that few minutes कि यार she's exactly what we need. तो बिना सोचे समझे we sort of, now you can. So when we, Aarti and Nitin meet, most of the time we talk about spirituality and how you see the world and how you should be, or how you should be, but just be who you are, but then also have a different perspective. मतलब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने, अगर मैंने 10 बोला हो तो सामने वाला भी 10 ही देखे, वो 0 1 भी देख सकता है, right? So there's always वो shift करना perspective बहुत ज़रूरी है कि हर किसी का अपना एक तरीका होता है सोचने का, एक अपना तरीका होता है behave करने का. So that's what we most of the time talk about, and then out of nowhere. Nitin and Aarti is like, listen, we are planning to do a film and it is actually on Gannu. और मैं ऐसी हो गई Gannu, I don't know any Gannu, because I think we're talking about Ganpati Bappa. I said, okay. And then they said कि ऐसा कुछ plan कर रहे हैं, so will you be interested being a part of this film? I said, are you kidding me? Of course, I would love to be a part of it. And I think बहुत सारे process चल रहे थे. Then उसके बाद जब हम लोग ने बात की थी, immediately we went for a holiday. Yes, we went to Kashmir. Yeah, we went to Kashmir. तो वहाँ पे हम लोग ने थोड़े बहुत, because I was flying to London for my film, Mystery of Tattoo. तो then Aarti is like, you come back and then we'll get into the shooting mode. Yeah. I remember I flew down. मैं नोवोटेल में थी क्योंकि तभी क्वारंटाइन करना जरूरी था. Must. 7 days मैं नोवोटेल में थी and we were like back and forth. हम बात कर रहे थे कि अच्छा कपड़े क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, और मैं आधा टाइम तो मैं जेट लैग थी और लिटरली मैंने पूरी फिल्म भी जेट लैग में की है. But she's done a great job. So I think jet lag works well. I was supposed to be like that. I was anyway. Your character. I'm supposed to be joined in the film. Yeah. The character, and like I said, she was perfect to play it because she brought her own version, and it was actually better than our version. तो ऐसे we said चलो यार, she understands the character and she took it further. यार पता है कसम से मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने प्लानिंग करनी छोड़ दी. डिजायर्स है, मैं वो मेरे जो थॉट्स है, मेरी जो नीड्स है, मुझे जो करना पसंद है, वो मैंने अपने थॉट्स यूनिवर्स में डाल दिए. अब जब उसे देना होगा वो मुझे दे देंगे. सही देखो, सही टाइम हम नहीं जानते, वो वही जानता है. तो जब टाइम सही होगा और मैं प्रिपेयर रहूँगी वो चीज़ के लिए, तभी वो अपने आप मुझे दे देगा. And there's a line in the film that she says, you remember the line? कि मेरा इस साल वही गन्नू जी से वही रिक्वेस्ट है कि वो मुझे वो दे जो मेरे लिए अच्छा है, ना कि वो जो मैं चाहती हूँ. तो it's a beautiful process of कि सच में सरेंडर करना. तो दैट्स व्हाई आई सेड जो फिलॉसफी इनकी है और कैरेक्टर की फिलॉसफी और फिल्म की जो ईथोस है
that went so naturally well कि it just looked like a perfect. हाँ, बातें होती रहती है और खाली गणेश चतुर्थी के टाइम पे नहीं, मतलब मैं कहीं अगर ट्रैवल कर रही हूँ, इनफैक्ट बहुत बारी ऐसे होता है कि आई एम जस्ट टॉकिंग टू हिम हर, आई डोंट नो, वो हम नहीं जानते जेंडर क्या है, वो हम जानते हैं कि एक हायर पावर है, तो जब भी तकलीफ में होती है, जब भी कुछ डाउन हूँ किसी चीज़ की वजह से, आई टॉक टू हिम, आई टेल हिम दैट प्लीज टेक दिस अवे फ्रॉम मी, गिव मी द एबिलिटी टू सी द गुड इन अदर्स। क्योंकि हम जनरली क्या होता है कि हम सबके अंदर अच्छाई बुराई दोनों है, पर मोस्टली हम किसी बुराई देखना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसकी बुराई कहीं ना कहीं हमसे मैच करती है, तो हमें गिल्ट फील नहीं होता, वी डोंट वांट टू सी द गुड इन अदर्स। सो आई हैव दीज टॉक्स विद हिम दैट इवन तो अगर मैं किसी चीज़ को लेके या किसी को लेके मैं नाराज़ हूँ या मैं where I'm trying to process कि क्यों ऐसे हो रहा है, I literally tell him that give me the ability to see the good in any situation that you put me through. तो बहुत बातें होती हैं. That's actually the main story behind. तो me and Aarti we love celebrating Ganpati and हमने एक दो बार नोटिस किया कि as a god Ganpati is इट्स सो क्यूट, मतलब इतना प्यार ड्यूरिंग गणपति, इतना प्यार करते हैं लोग उस यू नो व्हेन यू ब्रिंग गणपति होम, बाजू में ही सोना है, एक मिनट के लिए उनको अकेला नहीं छोड़ना है। एंड मैं हमेशा नोटिस करता था कि जब भी वो विसर्जन के पहले, चाहे आदमी कोई भी हो, चाहे मैनेजर हो, प्यून हो, CEO हो, अंबानी हो, कोई भी हो, वो उस मोमेंट में झुक के उनके कान में कुछ कहते हैं। तो वो विजुअल इतना ब्यूटीफुल है कि यू नो दैट ईयर इज यूनिवर्सल, उस कान को ये नहीं पता कि आप कितने अमीर हो कितने गरीब हो, तो उस वक्त दोनों सब उसी लेवल पे आके विस्पर करते हैं। तो दैट्स वाई मी एंड आरती, हमारा इंस्पिरेशन वहीं से आया कि ये बोल तो रहे हैं, लेकिन अगर गणपति जवाब देगा एक दिन तो क्या ये सुन पाएंगे। सो दैट वाज एक्चुअली द सिंगल मोमेंट वेयर वी सेड कि यू नो दिस इज अ डिफाइनिंग मोमेंट कि इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। लिटरली मैं बोलूँ ना, ऐसे लगता है आए और चले गए। गेस्ट अपीयरेंस, आई नो इट गोज सो क्विक, मतलब और जब जाने वाले होते हैं ना, तो लिटरली जैसे 1.5 दिन क्या होता है कि मतलब जनरली 5-6 बजे से, मतलब उनका जो गुजराती में उत्थापन बोलते हैं, आई डोंट नो उसको क्या दूसरी लैंग्वेज में स्थापना, वापस लेके जाना, हाँ उसको उत्थापन बोलते हैं। अच्छा, हाँ व्हेन यू टेक अ पार्टला दूसरे उसका हाँ डालते, करेक्ट। हम लिटरली डिले करते हैं, हाँ 1 घंटा रुकते ना, हाँ 1 घंटा रुकते ना, तो करते करते फिर 9-10 बज जाते हैं रात के। यू नेगोशिएट विद पंडित जी 1 घंटे के बाद करें, अच्छे लग रहे, लाइटिंग अच्छी लग रही पंडित जी। वो टाइम पे पंडित जी ने, हाँ नहीं पंडित जी, अरे पंडित, ओ भाई साहब, पंडित जी तो मतलब अगर आपको जो स्लॉट दिया है वो स्लॉट में नहीं कर रहे हो, बिल्कुल, तो भैया ऑल द बेस्ट, मतलब सेलिब्रिटी वो है वहाँ पे। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ आई एम फीलिंग अ लिटिल ओवरवेल्म्ड बिकॉज ये फिल्म को थोड़ा टाइम लग गया आने में, तो बट ऑल क्रेडिट टू आरती, आई थिंक शी, माई वाइफ, शी हैज सिंगल हैंडेडली, शी हैड द फेथ। तो राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी जस्ट वॉन्ट दिस फिल्म टू रीच पीपल, एंड हमको इतना फेथ है कि पीपल विल लाइक द फिल्म, एंड गन्नू जी हैं वो लेके जाएंगे, वो चलते चलते पहुंच जाएगी जहाँ पहुंचना है फिल्म को। नहीं लेना है बिकॉज वो चलो क्योंकि ऑन स्क्रीन हम अच्छे लगते हैं, हमारा बॉन्डिंग लोगों को अच्छा लगता है, तो बस दिखने के लिए नहीं दिखना है, वो कहीं ना कहीं हमको हमारे रेज्यूमे पर भी बहुत मतलब फायदा देना चाहिए। पर आप टेंशन मत लो, देखो अभी गणपति जी के साथ फिल्म कर ली, तो नेक्स्ट अभी शिव के साथ ही होगा ना, राइट? सो डोंट वरी, इट्स ऑल इन द फैमिली। शिवा, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।